Hi friends, welcome to Classes by Lab Doctor. In today's class, let us see what are the crystals which we see in acidic urine और acidic pH में हम कौन से crystals को देखते हैं। ये हर क्रिस्टल के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बताया है. You can refer to those videos and learn in detail about all these crystals. But in today's video, we will just brush up or we will just take in general what are the crystals जो हम ये acidic pH में देखते हैं या जब यूरिन का pH कम रहेगा तभी which crystals appear in the urine. So there are few crystals which are seen in normal urine. Patient को कोई problem नहीं है and still we get some crystals जो acidic pH में आते हैं and there are some abnormal crystals also which can come in acidic urine. से है calcium oxalate है oxalic acid, so it is seen in acidic urine. Uric acid, so it should be seen in acidic urine. Amorphous urates, so again it is seen in acidic urine. So and there are few abnormal crystals which we see in acidic pH, like it can be cysteine, cholesterol, leucine, tyrosine, bilirubin and sulfonamide. So in the normal urine all these crystals are not present. Suppose if the patient is having congenital cystinosis, cystinuria, then like inborn error of metabolism, then cysteine crystals can be seen in the urine of that patient in the acidic urine. If the patient is having nephrotic syndrome, nephritis, acute kidney damage, so that time the patient can have cholesterol crystals in the urine in acidic pH. If the patient is having an inborn error of metabolism of a amino acid like leucine and tyrosine, then you can see these crystals in acidic urine. If the patient is having any liver related issues, so there can be bilirubin crystals which also appear in acidic urine. Then if the patient is on some kind of a sulfa drugs, they can crystallize in acidic urine. So all these are abnormal crystals which are seen in the acidic urine. So first let us come to the normal crystals, that is the calcium oxalate crystal. The most common kind of crystals जो हम यूरिन में most commonly देखते हैं वो है ये calcium oxalate crystals. ये दो फॉर्म में हम देखते हैं यूरिन में, एक तो ऐसे envelope शेप में रहेगा और दूसरा डम्बल शेप में रहेगा, ऐसे वाले डम्बल शेप में रहेगा. सो ये आप जान लीजिए कि ये एसिडिक यूरिन में अगर ऐसे आपको दिखते हैं envelope shaped या dumbbell shaped, it will be calcium oxalate. So this I have told you. ये देखिए यहाँ पे envelope shaped है, ये यहाँ पे dumbbell shaped है. So ये monohydrate है, जो dumbbell shape रहेगा ये monohydrate crystal है, calcium oxalate monohydrate, and जो ये envelope shaped है ये calcium oxalate dihydrate shape का है. ये birefringent रहता है, मतलब refractile रहता है, and जब भी हम ये diet rich in oxalates अभी लेते हैं तभी we can see these crystals in the urine, and these are normal crystals. Next is uric acid crystals. ये crystals भी हम बहुत commonly देखते हैं. ये भी this is a normal crystal which we see in urine, and जब भी the acidic pH रहेगा urine का, we see these crystals. ये usually ऐसे elongated रहेंगे and ऐसे ये yellowish tinge, इनको yellowish brown थोड़े दिखेंगे आपको, and ये भी birefringent रहते हैं. तो ऐसे देखिए ये elongated रहेंगे, ये ऐसे they will have some yellowish color hue, and they can also be seen like this in rosette shape में. हम ऐसे देखते रहते हैं यूरिन में, ऐसे वाले जो barrel shaped हम देखते रहते हैं. यहाँ पे आप देखोगे, here you can see this rhomboid shaped structure, so here you can see such crystals. If you are seeing such elongated crystals, ऐसे आप elongated देख रहे हो and थोड़ा yellowish tinge है, यूरिन का pH acidic है, so that could be uric acid crystal. So remember this. यही amorphous urates बोल के रहता है. amorphous मतलब इसका कोई प्रॉपर शेप या फॉर्म नहीं रहता, ये ऐसे पाउडरी शेप ऐसे रहते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं amorphous, जिसका प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप नहीं होता, बैरल शेप, हेक्सागोनल ऐसे नहीं रहते. ये वाले जो क्रिस्टल्स है, जब भी आप यूरिन सेडिमेंट को देखोगे तो ये एक ब्रिक डस्ट का वो आपको दिखेगा. जो यूरिन सेडिमेंट है वो थोड़ा ब्राउनिश आपको दिखेगा, एंड जब भी आप ये सेडिमेंट को आप अंडर माइक्रोस्कोपी अगर आप देखोगे
so that would be a urate crystals, amorphous urate crystals. so ऐसे ही हमको डिफरेंशिएट करना रहता है amorphous phosphate से, बट फॉस्फेट किधर कौन से पीएच में मिलेंगे, वो हमको अल्कलाइन पीएच में मिलेंगे, बट ये वाले जो है ये हमको एसिडिक पीएच में मिलेंगे, एंड ऑल्सो इसका कलर भी थोड़ा ब्राउनिश रहेगा, वेर एज फॉस्फेट का जो है वो व्हाइटिश रहेगा और वो अल्कलाइन पीएच में हमको दिखेगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ क्रिस्टल्स विच यू सी इन एसिडिक यूरिन. सो ये हो गए थे नॉर्मल क्रिस्टल. सो कैल्शियम ऑक्सलेट था, यूरिक एसिड था, एमॉर्फस यूरेट्स थे. बट अभी जब हम जो देखेंगे वो है एबनॉर्मल क्रिस्टल्स. ये क्रिस्टल्स नॉर्मली हम यूरिन में नहीं देखते हैं. वी शुड नॉट बी सीइंग दिस क्रिस्टल्स. बट सपोज इफ यू आर सीइंग सम क्रिस्टल्स लाइक दिस, एंड दैट टू if it is an acidic urine, and if the patient is having certain symptoms, then we can come to a diagnosis of that condition along with the patient's clinical history and other findings. So ये सिस्टीन जो क्रिस्टल रहते हैं ये 6 साइडेड, मतलब ये ऑलमोस्ट हेक्सागोनल शेप्ड क्रिस्टल्स रहते हैं, एंड ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, सिस्टीन्यूरिया जो बोल के रहता है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक अमाइनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट है वो ठीक से नहीं होता है. तो सिस्टीन क्या होता है, दिस विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. वो ट्रांसपोर्टेशन या रीएब्जॉर्प्शन इसका ठीक नहीं होता है, तो सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये सभी एक्सक्रीट हो जाते हैं. एंड जब ये अपने यूरिनरी जो किडनी के ये इसमें रहेंगे, ट्यूब्यूल्स में जब आएंगे, यूरेटर में, ये सभी जब एब्जॉर्ब होंगे ये क्रिस्टल्स, दे फॉर्म दिस हेक्सागोनल काइंड ऑफ अ प्रेसिपिटेट. सो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टीन्यूरिया. चिल्ड्रन में अगर स्टोन्स हमको पाए जाते हैं तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ स्टोन्स इन चिल्ड्रन. सो सिस्टीन्यूरिया के वजह से सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, एंड वी कैन सी दिस इन चिल्ड्रन. सो यहाँ पे आप देखिए हेक्सागोनल शेप्ड क्रिस्टल्स है, ये कलरलेस रहते हैं. यहाँ पे ये इनके जो क्रिस्टल्स, ये यहाँ पे देखिए आप, ये एग्रीगेट हो गए हैं. हियर यू कैन सी सिंगल क्रिस्टल्स ऑल्सो. दीज क्रिस्टल्स यू विल सी इन acidic urine. So here they may be thick, they may be thin, they might form rosettes, they might form aggregates one upon the other. एक टेस्ट रहता है साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, इनका कंफर्म करने के लिए हमको वो टेस्ट हम करते हैं. एंड दिस क्रिस्टल्स आर soluble in ammonia and dilute hydrochloric acid. So दूसरा है abnormal crystal, टायरोसिन क्रिस्टल. सो ये टायरोसिन क्रिस्टल ये नीडल शेप में रहेंगे. नीडल शेप अभी बहुत से अदर क्रिस्टल्स also you can see, but this needle crystals, this is abnormal crystals. normally हम उसको नहीं देखते रहते हैं, acidic pH में आता है ये, and they are sometimes blackish, रिफ्रेक्टाइल, वेरी शार्प नीडल्स, एंड ये से सिंगल या रोजेट्स में हम आपको हम देख सकते हैं. पेशेंट को अगर लिवर फेलियर हो गया है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में हम इनको देखते रहते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में, अगर टायरोसिन उसको ठीक से मेटाबोलाइज ही नहीं हुआ तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है, एंड वी गेट टायरोसिनेमिया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायरोसिनेमिया रहते हैं, 1, 2, 3, हेरिडिटरी टायरोसिनेमिया एक्सेट्रा. सो इसमें जो ये जो क्रिस्टल्स है ये एबनॉर्मल रहते हैं. दे अपीयर एज आई हैव टोल्ड यू, दे कैन बी रिफ्रैक्टाइल, दे कैन बी ब्राउनिश, समटाइम दे आर ब्लैकिश नीडल्स, एंड यूजुअली इसके साथ हम ल्यूसिन क्रिस्टल्स को भी देखते रहते हैं. इट इज वेरी रेयर दैट वी ओनली सी टायरोसिन एंड नॉट ल्यूसिन. एंड ऑल्सो यू विल बी सीइंग दैट पेशेंट को अदर लिवर पैरामीटर जो एबनॉर्मल है, लाइक बिलिरुबिन हमको पॉजिटिव आ जाएगा. ये सभी भी फाइंडिंग्स हमको अगर मिल रहे हैं, ऐसे क्रिस्टल्स हमको दिख रहे हैं, यूरिन का पीएच भी एसिडिक है, देन थिंक ऑफ टायरोसिन क्रिस्टल्स. ये है ल्यूसिन क्रिस्टल. सो ये ऐसे अगर एक ऑयल ड्रॉप को आप पानी में डालोगे तो यू कैन सी सम स्ट्राइएशंस लाइक दिस. सो दिस इज येलोइश ब्राउन एंड यू विल सी दिस रेडियल स्ट्राइएशन. सो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. यू कैन सी द कॉन्सेंट्रिक स्ट्राइएशंस हियर एंड येलोइश इन कलर. सो ये यूरिन क्रिस्टल्स जो है टायरोसिन एंड ल्यूसिन, यूजुअली ये टुगेदर ही हम देखते हैं, एसिडिक यूरिन में देखते हैं. लिवर डैमेज में अगर हम इनको देखते हैं,
इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में मैंने बोला था वी कैन सी दिस क्रिस्टल्स, वी सी देम टुगेदर। ये जो टायरोसिन रहेगा फाइन नीडल्स के तरह रहेगा, क्लस्टर्स में रहेगा, whereas ल्यूसिन जो है मैंने बताया ये दे विल बी यूजुअली स्फेरिकल एंड दे हैव दिस क्रॉस स्ट्राइएशन, वो क्लस्टर्स में भी आपको दिख सकते हैं। ये मैंने बताया आपको कि दे अपीयर ब्लैक है रहेंगे या ब्राउनिश शार्प नीडल्स रहेंगे, रिफ्रैक्टाइल रहेंगे, whereas here I've told you they look like an oil looking spears, so they have this cross striations, radial striations, etc. So that is about the leucine and tyrosin. This is the bilirubin crystals. जब भी patient को कोई liver disorder है, high bilirubin है, so sometimes the patient might excrete this bilirubin in the urine and then you can get such crystals also. And other symptoms भी रहेंगे patients को, like you have nausea रहेगा, pain, vomiting, jaundice रहेगा, along with that his liver parameters will be altered, and when you see the urine you will see such yellowish needle like crystals. So then you can come to a conclusion that this could be a bilirubin crystal. This is also not seen, usually हम उसको नहीं देखते हैं, अगर मिलता है तो ये abnormal है, हमको correlate करके ही we will have to report such crystals. ये है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप रहेंगे, थिन रहेंगे, समटाइम्स दे आर वेरी थिक आल्सो, एग्रीगेट भी रह सकते हैं, कभी कभी एजेस में दे आर यू कैन सी दिस ब्रोकन एजेस काइंड ऑफ ये। सो दिस यू कैन सी इन एसिडिक यूरिन, समटाइम इन न्यूट्रल यूरिन में भी ये मिलता है। सो यूजुअली मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स कब आते हैं, जब पेशेंट इज हैविंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेट्रा, क्योंकि उस पेशेंट में क्या हो जाता है, देयर इज हेवी प्रोटीन्यूरिया, so whenever there is the liver is stimulated, that time the fat is also extra produced, and here you can see fatty cast, oval fatty bodies etc along with cholesterol crystals. So you are seeing a patient जिसको proteinuria है, इसको crystals ऐसे आपको दिख रहे हैं, उसके साथ आपको fatty cast भी दिख रहे हैं, oval bodies भी दिख रहे हैं, fatty oval bodies, then you can think whether the patient could be having some kind of kidney damage like nephrotic syndrome etc. This are the sulfonamide crystals. ये drug induced crystals है, जब पेशेंट बहुत सारा सल्फोनामाइड उसको डोसेज हो जाता है, टाइम समटाइम्स दिस गेट क्रिस्टलाइज्ड एंड दे कैन बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये दिस क्रिस्टल्स वॉट एवर आर द सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स, ये एबनॉर्मल रहते हैं, येलोइश रहेंगे, ये नीडल शेप्ड ही रहेंगे। इफ यू आस्क द पेशेंट द हिस्ट्री कि आप कोई ड्रग आपको एडमिनिस्टर हुआ है, सो दे विल गेट अ हिस्ट्री ऑफ सल्फोनामाइड इंजेक्शन, and you can see that these crystals sometimes they get precipitated in the kidney and cause kidney damage also. So this looks like this wheat stalk. So here you can see something, it looks like this. So if you are seeing urine which are having crystals like this, like some looking like a wheat stalk, and if you are seeing it in acidic urine, patient is also giving you a history of drug administration, then it could be a sulfonamide crystal. So whenever you are seeing a crystal, these are very important, asking the patient, taking proper history, क्या है क्या, what is patient is having, what are the drugs he has taken, other urinary findings also. So to brush up, ये जो acidic pH में we can see few normal crystals and we can see few abnormal crystals. So normal crystals कौन से है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, एमोर्फस यूरेट, ये नॉर्मल क्रिस्टल्स है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी यूरिन में पाए जाते हैं। एंड देर आर फ्यू क्रिस्टल्स जो एबनॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल यूरिन में वी शुड नॉट बी सीइंग दोस क्रिस्टल्स, लाइक वी हैड ल्यूसिन, वी हैड टायरोसिन, वी हैड सिस्टीन, वी हैड कोलेस्ट्रॉल, bilirubin and sulfonamides. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.